Hello students, today we will complete our lesson 7 of Beehive book, that is packing, page number 86. It irritated them more than anything. I could have said I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them, and then they couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies होती है कचौड़ी, eating things, at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. Here George and Harris were packing the things for journey. At that time they were very irritating. They were leaving the things behind, and they were finding the things, and means that they were very nervous in packing the things. They were worst packers. They didn't know how to pack the things for the journey. They packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in, means नीचे तो कचौड़ियाँ रख देते हैं, ऊपर heavy things को रख देते हैं जिससे वो सारा smash हो जाता है. They upset salt over everything, means they upset, हर जगह वो नमक फैला देते हैं, means कहते हैं हर काम को वो बड़े ही गंदे तरीके से करते हैं. मिसमैनेजमेंट कर रखी है उन्होंने हर काम की, विदाउट सिस्टमैटिक वे. And as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. Means वो दोनों persons बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं. जॉर्ज और हैरिस बिल्कुल एक जैसा काम कैसे कर रहे हैं, वो सारा काम बिल्कुल वर्स्ट तरीके से कर रहे हैं, विदाउट एनी सिस्टम. बटर रख देते हैं, बटर के ऊपर. After George has got it off his sleeper, they tried to put it in the kettle. पहले क्या करते हैं वो, जो स्लीपर हैं उनको कैटल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं. It wouldn't go in, वो कैटल के अंदर जा ही नहीं रहे. They tried to put it in the kettle, फिर भी वो फोर्सफुली कैटल में शूज़ को रख देते हैं, स्लीपर को. Then they did scrap it out at last, और फिर से उसको बाहर रख निकालते हैं and put it down on a chair. After that they put the sleeper down on a chair and Harry sat on it, और हैरिस उस चेयर पर बैठ जाता है. और आफ्टर दैट they were finding the sleepers and they didn't find the sleepers and it sucked to him. They went looking for it all over the room. फिर पूरे रूम में स्लीपर को ढूंढते हैं. जहाँ हैरिस उसके ऊपर ही बैठ जाता है, चेयर के नीचे रखे और वो उसके ऊपर बैठा है, और फिर वो उसको ढूंढ रहे हैं बट वो कहीं भी नहीं मिलते. मीन्स वो सामान को कहीं रख देते हैं और कहीं ढूंढ रहे हैं. I will take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस कहता है कि पहले तो जॉर्ज कहता है कि मैं ओथ कसम लेता हूँ मैंने नहीं रखा, लेकिन हैरिस कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ रखते हुए देखा था 1 मिनट पहले. Then they started round the room again looking for it, and they went round the room for finding the things, but they didn't find it. Then they met again in the center and stared at one another. Most extraordinary thing I have ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of Harris and saw it. Why, here it is all the time, he exclaimed indigently. Indigent नहीं होते, great anger. Means they were putting the things here and there in the room. When they needed it, they found it, but they didn't found it the things, and means they were the worst packers. They were not putting the things in a bag in a systematic way. Stand still, can't you, roared George, flying after me. कि तुम यहाँ रुको, मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो. एंड देन दे गोट इट ऑफ, पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसको फिर से उसमें टी पॉट में पैक कर देते. आफ्टर दैट हेयर Montmorency was in at all. Of course, most Montmorency ambition in life is to get in the way and sworn at. जो Montmorency है वो उसमें एक डॉग करेक्टर है, उसकी लाइफ में क्या एम्बिशन है कि अब लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसकी एम्बिशन है. स्वर्न एट का मतलब कि उसमें हेयर गोट स्कोल्डेड,
कि दूसरों से डांट खाना, दूसरों को परेशान करना उसका एक एम्बिशन है. If he can skirm in everywhere, enter with difficulty where he particularly is not wanted, कि उसको कोई अपने काम में एंटर नहीं करने देता जाता, फिर भी वो फोर्सफुली सबके काम में घुस जाता है प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए. एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड क्रिएट अ perfect nuisance and the work of other persons and make people mad. And Montmorency with its behavior, with its nuisance activities, makes the people mad and have things thrown at his head. और जो लोगों को इतना परेशान करता है कि लोग आखिर में उसके ऊपर चीज़ें फेंकने लग जाते हैं, तब जाकर वो कहीं उसको तसल्ली मिलती है कि उसका जो डे है वो सक्सेसफुल गया है. And then he feels his day has not been wasted. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim. उसका जो highest aim क्या है कि लोग उसके ऊपर कोई चीज़ फेंक कर मारे और curse him steadily, 1 घंटे तक उसको कोसते रहें. वो उनको लोगों को इतना परेशान करता है कि 1 घंटे तक लोग उसको कोसते रहें और फिर उसका दिन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है. उसका हाईएस्ट एम है मोंटमोरेंसी का. And when he was succeeded in accomplishing this, accomplishing is completing his task. Montmorency का completing task कौन सा है? To create problem in the life of other persons. His conceit becomes quite unbearable. Conceit means feeling pride, feeling proud. He came and sat down on the things, and he also came and sat on the things कि जॉर्ज और हैरिस वर पैकिंग द थिंग्स फॉर द हैम्पर्स एट दैट टाइम when they need some things for packing. At that time Montmorency sat on the things which they were finding. जो सामान वो ढूंढ रहे हैं, जो सामान वो पैक करने के लिए उठाना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर मोंटमोरेंसी आकर बैठ जाता है. And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. जो भी चीज़ उठाने लगते हैं पहले जो है मोंटमोरेंसी की नाक हाथ में आती है, मीन्स वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बैठा है. He put his leg into the jam, वो जैम के बीच में अपनी लेग को रख देता है. एंड ही वरीड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रेड्स. और वो इस प्रकार से प्रिटेंड होता है, बहाना बनाना, जानबूझकर ये करता है कि जो ये लेमन्स हैं वो रेड्स हैं और उनको मारने की कोशिश करता है. गोट इन टू द हैम्पर एंड killed 3 of them before Harris could land him with a fry pan. और उनको ऐसे मारने के लिए कोशिश करता है कि ये जो रैट्स हैं, ये जो लेमन्स है रैट्स है, और फिर हैरिस आखिर में उसको फ्राइंग पैन मारने की कोशिश करता है, तब जाके वो कहीं वहाँ से दूर होता है. हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज्ड हिम. हैरिस कहता है क्या मैंने इसको एनकरेज किया कि ये आकर हमारे काम में प्रॉब्लम क्रिएट करे? आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने इसको नहीं बुलाया. A dog like that doesn't want any encouragement, कि इस प्रकार के डॉग को एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये तो बिना बुलाया आ जाता है लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए. इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन, ये इसका नेचुरल सिन है. सिन मतलब पाप होता है वैसे तो, कि ये अब प्रॉब्लम क्रिएट करना एक इसकी हैबिट है. दैट इज़ बोर्न इन हिम, दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट. The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper. जो बिग हैम्पर मीन्स हैम्पर होता है, बास्केट पैक कर रहे हैं फूड आइटम्स, ईटेबल आइटम्स की, तो वो 12:50 पर पैक हो जाती है. हैरिस जो है उस हैम्पर पर बैठ जाता है. एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे बैठने से टूटी नहीं होगी. जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन. जॉर्ज कहता है अगर टूट गई होगी तो टूट गई होगी, इट डजेंट मैटर. Which reflection seemed to comfort him. उनको ये थिंकिंग comfort करती. He also said he was ready for bed. Now they were getting ready for taking their sleep. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night. कि हैरिस को आज रात हमारे साथ सोना है. They went upstairs. सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं. We tossed for bed. बेडिंग के लिए टॉस करते हैं. हैरिस हैड टू स्लीप विद मी. जो हैरिस है उसको नरेटर के साथ सोना है. ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड, तुम बेड के अंदर की तरफ सोना चाहते हो या बाहर की तरफ? आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड. हैरिस सेड इट वॉज ओड. जॉर्ज सेड
नाउ व्हाट टाइम शैल आई वेक अप यू फेलोज, कि मैं तुम्हें कितने बजे उठाऊं? हैरी सेड 7, आई सेड नो 6 because I wanted to write letters. The narrator said that 6 because narrator had to write some letters. Harris and I had a bit of a row over it, but at the last they made an opinion that at 6:30 a.m. they all will wake up. George made no answer. We found on going over that he जॉर्ज कोई आंसर नहीं देता. क्यों नहीं देता? क्योंकि जब हैरिस और नरेटर आपस में बात कर रहे हैं, सुबह उठने का टाइम फिक्स कर रहे हैं, इस दौरान जो जॉर्ज है वो सो जाता है. सो वी प्लेस, सो हैरिस और नरेटर ने मिलकर जहाँ जॉर्ज सोया है वहाँ एक पानी का टब भर के रख देते हैं. पानी का टब भर के क्यों रखते हैं? कि जैसे ही जॉर्ज सुबह उठे और वो उठते ही पानी के टब में गिर जाए. वेयर ही वुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग. टम्बल इनटू मीन ड्रॉप इनटू इट, कि उसके अंदर गिर जाए. एंड वेंट टू बेड अवर सेल्स, और ऐसा करके पानी का बेड जॉर्ज के, पानी का टब जॉर्ज के बेडिंग के साथ रखकर वो दोनों भी सो जाते हैं. दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट टुडे. नाउ यू हैव टू रीड द चैप्टर thoroughly from the text after listening the video.